Good afternoon, students. I hope you all are safe and doing all your maths exercise very clearly, finely, and properly. Daily practicing maths to improve your maths, right? So, as you all know, we have done exercise 10A yesterday. So, today we are going to do exercise 10. Okay, so let's start with our video without wasting any much of time. So, exercise 10B is on page number 84. I know I have already told you about this in your Zoom meeting, but still I am going to explain you this. Okay, so exercise 10B में question 1 is multiply, in which you have to multiply a decimal fraction with a whole number. ठीक, so nothing to worry about, it's really very easy. Just multiply the numbers as it is. 6 4s are 24 का 4 carry over 2, 6 0s are 0 plus 2 is 2. It will be 24. But you must know that where to put one decimal. आपको decimal कहाँ put करना है. You can see that एक digit से पहले decimal is there in the question. So in your answer also you have to put this decimal before one digit. Is it clear? Okay. Now let me do this second question as well for all of you. 2.8 को 15 से multiply करना है. 5 8s are 40 का 0 carry हुआ 4. 5 4s are 20, 5 2s are 10 और 4 40. I'll put a cross here because once one digit is one's place का जो number है that is over. We have already multiplied with it. So now 1 8s are 8, 1 2s are 2. ठीक है? Okay. So 0, it will be 8 or 4 12 का 2. Carry over 1, 1 plus 1 2, 2 plus 2 4. Now you have to see that in your question only one digit से पहले decimal is there. So here also you have to write decimal before one place only, and you will get your answer. Fine. This is really very easy and interesting. Now let's do question number 2 का A part, which is 0.3 into 3. Just multiply the numbers. 3 3s are 9 होता है. कितने डिजिट से पहले डेसिमल है? एक डिजिट से पहले डेसिमल है. Just put this. Okay. Now here also 1.2 into 9. I just told you consider it as 12. 12 9s are 108. Now you can see that in question one digit से पहले decimal is there, so you also put one digit से पहले decimal, and now you will get 10.8 as your answer. Fine. Now let me do this third question का A part for all of you. Let us do it. So question number 3 का A part is 0.85 में 11 की multiply करनी है. 1 5s are 5, 1 8s are 8, and 1 0s are 0. Put a cross. 1 5s are 5, 1 8s are 8, 1 0s are 0. Add the numbers. It will be 5, 8 plus 5 13 का 3, 1 carry, 1 plus 0 is 1, 1 plus 8 is 9, 0. ठीक है, दो डिजिट से. सो नाउ यू हैव टू सी कि क्वेश्चन में कितने डिजिट से पहले डेसिमल है. 1 2 2 डिजिट से पहले, तो आप आंसर में भी बिफोर 2 डिजिट पुट अ डेसिमल. सो व्हाट विल बी योर आंसर इन दिस क्वेश्चन? इट विल बी 09.35. okay, so in the same manner you can do fourth question and fifth question also. I'm not explaining this because we have already done these questions. Now let's do fill in part. Sixth question का first part. 7.12 multiply by 10. मल्टीप्लाई करो इसको. किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं हमें सेम नंबर मिलता है, एंड इफ इट इज़ 10 तो विल पुट अ 0 है. नाउ 2 डिजिट से पहले डेसिमल इज देयर इन द क्वेश्चन, तो यहाँ भी 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाइए. इट विल बी 71.20. ठीक. ऐसे ही अगर मैं डी पार्ट करती हूँ 0.936 इंटू 100, तो 0.936 मैंने आपको हमेशा बोला कि उसको एज इट इज़ नंबर कंसिडर करिए. 936 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 93600 विल बी द आंसर. अब आपको देखो क्वेश्चन में बोला है 3 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो आपने 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दिया एंड यू विल गेट योर आंसर 93.600. ठीक है. सिमिलरली आप जी पार्ट कर सकते हो. ऐसे ही अगर मैं आपको 7th क्वेश्चन समझाऊँ तो 5.26 इंटू 30 मल्टीप्लाई करना है. 5.26 को 30 से मल्टीप्लाई करो. चलो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 0. पुट अ क्रॉस हेयर. 3 6 जा 18 का 8, 1 कैरी, 3 2 जा 6 and 1 9, 3 5 जा 50. So what answer you get? 08951. That means your answer will be 15980. कितनी डिजिट से पहले डेसिमल लगाएंगे? 2 डिजिट से पहले यू विल पुट अ डेसिमल. ठीक है बेटा, इधर 7 है, ये है ना. Okay, so this exercise we have already done, so I have just explained you is okay. So let's do the next exercise also.
स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अबाउट मल्टीप्लाइंग टू डेसिमल फ्रैक्शंस। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग दो डेसिमल फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। इट्स ऑल्सो वेरी इजी, बट बिफोर गोइंग टू दोज क्वेश्चंस लेट मी एक्सप्लेन यू सम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। सो बच्चा, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है द प्रोडक्ट ऑफ डेसिमल्स इन एनी ऑर्डर इज द सेम। द प्रोडक्ट ऑफ डेसिमल्स इन एनी ऑर्डर इज द सेम। किसी भी ऑर्डर में अगर आप प्रोडक्ट करते हो, इवन आप डेसिमल्स नहीं, किसी भी नंबर का भी प्रोडक्ट करते हो ना किसी भी ऑर्डर में, इट विल रिमेन एज इट इज़, ठीक है। तो द प्रोडक्ट ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन और होल नंबर किसी भी ऑर्डर में हो तो वो भी सेम होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेसिमल मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू द सेम डेसिमल। दैट मीन्स इफ यू आर मल्टीप्लाइंग 0.28 with 0.68 with 1, so your answer will be the same decimal, that is 0.68. सिमिलरली अगर आप 1 को डेसिमल से मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपको सेम ही डेसिमल मिलता है, वही ना, ऑर्डर चेंज किया बट रिजल्ट तो चेंज नहीं हुआ। ऐसे ही अगर आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाओगे तो दिस इज डेसिमल मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू 0 और 0 मल्टीप्लाई बाय डेसिमल इज इक्वल्स टू 0। इफ़ यू विल मल्टीप्लाई एनी ऑफ द नंबर्स विद 0 you will get 0 only. This is the main and important property. नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर डेसिमल्स, यानी अगर कॉम्बिनेशन में कोई प्रोडक्ट होता है तो भी उनका रिजल्ट सेम ही आता है। अगर आपका ये नंबर है 0.2 इंटू 1.3 इंटू 4.5, आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, आंसर को इससे मल्टीप्लाई करो, या फिर आप रेस्ट टू नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करो, उसको इससे मल्टीप्लाई करो, वट एवर द आंसर यू विल गेट विल बी रिमेन एज इट इज़। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.3, ठीक है, मान लो ये है, मैंने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 2 तो रहेगा ही, लेकिन डिजिट 2 डिजिट से पहले डेसिमल आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 0.3, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपको 6 मिला और आपको 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज़ और समझा देती हूँ, जब आपको दो डेसिमल फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना होता है ना, जैसे 0.1 और 0.2 को मल्टीप्लाई करना है, तो आप दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करो एज इट इज़। उसके बाद देखो कि इसमें भी एक डिजिट से पहले डेसिमल है, इसमें भी एक डिजिट से पहले डेसिमल है, इसका मतलब आंसर में 2 डिजिट से पहले डेसिमल होगा। आपको ऐड करना होता है नंबर ऑफ डिजिट्स को, डिजिट्स कितनी डिजिट से पहले डेसिमल है आपको उनसे पहले डेसिमल लगाना है, ठीक है। तो ये आंसर आपका मिल जाएगा। आप इसको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, आपको सेम ही आंसर मिलेगा। वीडियो को पॉज करके देखिए, इफ़ यू विल गेट सेम रिजल्ट दैट मीन्स इट्स फाइन, ओके। So let's come to our exercise now. Our exercise is 10C in which some good questions are there. Question number 1 is 0.3 multiply by 1.4. चलो मल्टीप्लाई करते हैं 0.3 को 1.4 से, बहुत सिंपल है। 4 3 से 12 का 2, 1 कैरी, 4 0 से 0 एंड 1 4, सॉरी 1 ही तो आएगा भाई। Put a cross here, 1 3 is 3 and 1 0 is 0. It will be 2, 1 plus 3 is 4 and 0. So 1 डिजिट से पहले यहाँ डेसिमल है, 1 डिजिट से पहले यहाँ डेसिमल है। आपको क्या करना है, दोनों को एक साथ लिखना है, 1 और 1 2, यानी 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है आपको आंसर में। सो योर प्रोडक्ट विल बी 0.42। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। जो भी आपके दोनों नंबर्स हैं उनमें जितने भी डिजिट से पहले डेसिमल है, दोनों को एक साथ काउंट करो एंड यू विल गेट योर रिजल्ट। अभी मैं आपको सी पार्ट सॉल्व करके बताती हूँ। 2.04 एंड 6.2 मल्टीप्लाई द नंबर्स, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, पुटा कॉमा, 6 4 ज़ा 24 का 4, कैरी हुआ 2, 6 0 ज़ा 0, 0 में 2 प्लस करोगे तो 2, 6 2 ज़ा 12, ओके। दिस विल बी 8, 0 प्लस 4 इज़ 4, 4 प्लस 2 इज़ 6, 2 एंड 1। अब आपको क्वेश्चन में देखना है कि कितने डिजिट से पहले डेसिमल है, एक डिजिट से पहले और यहाँ पे 2 डिजिट से पहले, तो 1 प्लस 2 इज़ 3, यानी आपको 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है। सो योर आंसर विल बी 12.648। समझ में आया, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स डू सम अदर क्वेश्चंस। जैसे मैं सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको समझाती हूँ। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.2। 4 2 सा कितना होता है 8, सीधा सीधा आंसर है, लेकिन 2 डिजिट से पहले पॉइंट है। 8 आपके पास सिंगल है, अगर आपके पास दूसरी डिजिट नहीं है तो 0 लगाओ और उससे पहले डेसिमल लगा के अपना आंसर सॉल्व करो, ठीक है। ऐसे ही अगर आप थर्ड का ए पार्ट सॉल्व करोगे तो ये क्या है, 0.7 है, 1.2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, 3 7 ज़ा 21 का 1, कैरी हुआ 2, 3 0 ज़ा 0 और प्लस 2 इज़ 2,
2 7 ज़ा 14 का 4 कैरी हुआ 1, 2 0 ज़ा 0 एंड 1, 1 7 ज़ा 1 0 1, 4 + 2 6 8 एंड 0, 1 2 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, पूरा क्वेश्चन देखो कि कितने डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करोगे। देखो क्वेश्चन 4 का ए पार्ट बोल रहा है 0.654 को मल्टीप्लाई करो 3.25 के साथ। चलो भाई कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 5 4 ज़ा 20 का 0 कैरी हुआ 2, 5 5 ज़ा 25 और 2 27 कैरी हुआ 2, 5 6 ज़ा 30 30 + 2 का 32 का 2 कैरी हुआ 3, 5 0 ज़ा 0 + 3 is 3। Now put across 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 का 0 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 और 1 13 का 3 1 कैरी, 2 0 ज़ा 0 एंड 1 1। Now put 2 crosses, 3 4 ज़ा 12 का 2 कैरी हुआ 1, 3 5 ज़ा 15 एंड 1 16 का 6 कैरी हुआ 1, 3 6 ज़ा 18 एंड 1 19 का 9 1 कैरी, 3 0 ज़ा 0 एंड +1। ठीक है, अब इसको प्लस करो, 8 + 7 होता है 15, 1 कैरी, 5 6 7 8 9 10 11 12 का 2 कैरी हुआ 1, 9 10 11 का 1 कैरी हुआ 1। अब देखो कितने डिजिट से पहले पॉइंट है, 1 2 3 4 5 5 डिजिट से पहले, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा आपका डेसिमल एंड दिस विल बी योर आंसर। समझ में आया? क्वेश्चन ईजी है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, उससे पहले देखना है कि डेसिमल कितने डिजिट से पहले लगेगा, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 5 6 एंड 7 इज लेफ्ट। देखो 5 क्वेश्चन में क्या है, ऑर्डर्स। मैंने आपको बोला इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में ऑर्डर सेम होना चाहिए। 2.6 इज देयर लेफ्ट हैंड साइड में लेकिन राइट हैंड साइड में नहीं है, तो आप उसको ही ब्लैंक के अंदर लिखोगे। 12 और 12 इज देयर इन द क्वेश्चन। ऐसे ही बी पार्ट में 0.8 इज देयर इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में एंड 0.8 इज देयर इन द राइट हैंड साइड ऑल्सो। कौन सा नंबर नहीं है, 1.5 नहीं है। ऐसे ही सी पार्ट होगा, किसी भी डेसिमल में 1 की मल्टीप्लाई करोगे सेम डेसिमल मिलता है। किसी भी डेसिमल में 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो सेम डेसिमल मिलेगा। डेसिमल में 1 की मल्टीप्लाई करने पे ही सेम डेसिमल मिलता है। अगर डेसिमल में 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही मिलेगा भाई। 2.3 इज़ हेयर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी। 0.6 इज़ देयर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी। 1.8 इज़ हेयर बट नॉट हेयर, तो हेयर इट विल बी 1.8। सिमिलरली आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा। अब लेट्स कम टू मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में फर्स्ट पार्ट में आपको समझाती हूँ। बेटा जब इस तरीके के कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हो। देखो 6 का ए पार्ट है आपका, 0.4 में मल्टीप्लाई करना है 1.6 की, मल्टीप्लाई करना है 15 की। तो आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 0.4 को 1.6 के साथ मल्टीप्लाई करो। 6 4 ज़ा 24 का 4 कैरी हुआ 2, 6 0 ज़ा 0 और 2 2 होता है। ठीक है, 1 4 ज़ा 4, 1 0 ज़ा 0, प्लस करो 4, 2 + 4 इज 6 एंड 0। कितने डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा, 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा, सो इट विल बी 0.64। अब 0.64 की मल्टीप्लाई करनी है 15 के साथ। मल्टीप्लाई करो, 5 4 ज़ा 20, 0 कैरी हुआ 2, 5 6 ज़ा 30, 32 का 2 एंड 3, 5 0 ज़ा 0 + 3 इज 3, 1 4 ज़ा 4, 1 6 ज़ा 6, 0 6 9। कितने डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा, 2 डिजिट से पहले, तो आपका आंसर एट द एंड क्या आया, 9.60। ठीक है, इसी तरीके से आप क्वेश्चन 7 भी सॉल्व करोगे। ट्राई टू डू दीज क्वेश्चंस। नहीं समझ आता है जूम मीटिंग में पूछिएगा, बट क्वेश्चंस को सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो गुड बाय एवरीवन, टेक केयर एंड स्टे सेफ।